Hello, guys. Today's topic is silent hypoxia. Now, why it was in the news? Because many medical practitioners around the world treating people for COVID 19 have reported a condition called silent or happy hypoxia. Now, the question arises, what is hypoxia? First of all, we will discuss the hypoxia. Hypoxia is a condition wherein there is not enough oxygen available to the blood and body tissues. Hypoxia can either be generalized, affecting the whole body, or local, affecting a region of the body. Normal arterial oxygen is approximately 75 to 100 mm of mercury, and normal pulse oximeter readings usually range from 95 to 100%. Values under 90% are considered low. When levels fall below 90%, patients could begin experiencing lethargy, confusion, or mental disruptions because of insufficient quantities of oxygen reaching the brain. Levels below 80% can result in damage to vital organs. तो हाइपोक्सिया वो कंडीशन है कि जब बॉडी टिश्यूज या ब्लड में एनफ ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो. हाइपोक्सिया जनरलाइज्ड भी हो सकता है कि पूरी बॉडी को अफेक्ट करे, या फिर लोकलाइज्ड हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन को बॉडी के उसको अफेक्ट करे. नॉर्मल आर्टीरियल ऑक्सीजन जो होती है वो 75 टू 100 mm ऑफ मर्करी होती है, और नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग्स जो है यूजुअली 95 टू 100% की रेंज में होती हैं. अगर ऑक्सीमीटर रीडिंग्स जो हैं 90% से कम है तो ये लेवल जो होता है ये भी कम कंसिडर किया जाता है, और इस सिचुएशन में ऑक्सीजन मतलब कि ब्रेन तक इनसफिशिएंट पहुंच रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को कन्फ्यूज़न, आलस्य और मेंटल डिस्ट्रप्शंस एक्सपीरियंस होता है. यदि 80% से नीचे है ऑक्सीमीटर रीडिंग तो वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं. अब डिस्कस करेंगे साइलेंट हाइपोक्सिया. In silent or happy hypoxia, patients appear to be less in distress. Many COVID 19 patients, despite having oxygen levels below 80%, look fairly at ease and alert, according to multiple reports. This phenomena has puzzled several medical practitioners. साइलेंट हाइपोक्सिया की वो कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन लेवल्स 80% से नीचे जाने के बाद भी पेशेंट को कोई भी अनईजीनेस नहीं होती, वो ईज महसूस करता है, अलर्ट रहता है, कोई मेंटल कन्फ्यूज़न नहीं रहता. तो इस फिनोमिना से जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो पजल्ड हैं. इन emergency wards, doctors have reported patients having oxygen levels below 80 or 70%, in some cases even lower than 50%. Those with such low levels of oxygen would ordinarily appear extremely ill, but not in silent hypoxia cases. Patients have been reported sitting up in bed, talking, or operating mobile phones. In many cases, COVID 19 patients with silent hypoxia did not exhibit symptoms such as shortness of breath or coughing until their oxygen fell to acutely low levels, at which point there was a risk of acute respiratory distress, ARDS, and organ failure. Now we'll discuss what explains this phenomena. The reason why people are left feeling breathless is not because of the fall in oxygen levels itself, but due to the rise in carbon dioxide levels that occur at the same time when lungs are not able to expel this gas efficiently. लोगों को ब्रीथलेसनेस की सिचुएशन कब होती है? सिर्फ ऑक्सीजन लेवल गिरने की वजह से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने की वजह से भी, कि एक तरफ तो ऑक्सीजन लेवल गिरता है, दूसरी तरफ साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है, और लंग्स जो हैं इस गैस को, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एफिशिएंटली एक्सपेल नहीं कर पाते. This response does not appear to be kicking in some COVID 19 patients, because in patients with COVID pneumonia, the virus causes air sacs to fall, leading to a reduction in levels of oxygen. However,
the lungs initially do not become stiff or heavy with fluid and remain compliant, being able to expel carbon dioxide and avoiding its buildup. Thus, patients do not feel short of breath. लेकिन कोविड-19 पेशेंट्स में ऐसा रेस्पॉन्स अपीयर नहीं होता। पेशेंट्स जो कि कोविड न्यूमोनिया से सफरिंग होते हैं, वायरस की वजह से एयर सैक्स जो हैं वो फॉल करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल्स जो है उसमें रिडक्शन आता है। लेकिन लंग्स जो हैं इनिशियली वो स्टिफ नहीं होते या फिर फ्लूइड की वजह से वो हैवी नहीं होते, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करने में एबल हो पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप नहीं हो पाती जबकि ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है। इस वजह से पेशेंट्स जो हैं उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो महसूस नहीं होती साइलेंट हाइपोक्सिया में या हैप्पी हाइपोक्सिया में। इट मीन्स कि साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हाइपोक्सिया के सिम्टम्स भी अपीयर नहीं हो रहे, जबकि हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम ऑलरेडी पेशेंट के अंदर जो है वो डेवलप हो रही है, तो उसको डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे, तो टाइमली ट्रीटमेंट जो है उसका नहीं हो पाता। अब डिस्कस करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। इट इज़ ए मेडिकल डिवाइस called a pulse oximeter used to detect oxygen level in the blood could help in the early detection of silent hypoxia। यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन की। यूजिंग दिस डिवाइस दोज हु हैव कोविड-19 और दोज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग इट कैन चेक देयर ऑक्सीजन लेवल्स अर्ली ऑन। यानी कि जिन लोगों को कोविड-19 है या जो सस्पेक्टेड हैं वो अपने ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं अर्ली स्टेज में इस डिवाइस की हेल्प से चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, इतना ही साइलेंट हाइपोक्सिया में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थकमिंग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, हमारे चैनल्स के और भी वीडियोस आपने देखे हैं वो भी अच्छे लगे हों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद।